Yes, good morning, students. Just give me a minute to share the screen. Okay. ओके, सो कल हमारा टाइगर हिल कंप्लीट हो गया था, राइट? एक मिनट, लेट मी चेक। कौन सा पेज है मेरा? नहीं, मिसेस एडिस। हाँ, मिसेस एडिस हमने कल कंप्लीट किया था। टाइगर हिल भी हमने कंप्लीट कर लिया। फाइन। सो वी हैव डन द सेक्शन 1 डन। सेक्शन 2 का अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज भी डन है। Today we'll start with the night dream. Extract of drama, that is the 4.3 night dream. ठीक है? Written by the William Shakespeare. Just give a second to me. So बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। नॉट अ शॉर्ट बट काफी इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक, थ्रिलर, सारी चीजें इसके अंदर है। चल, we'll start. A Midsummer Night Dream. ठीक है? Let me just have to read someone. No, Rudra. आ रहे अभी तक लोग। ओके। सुजिता, सुजिता मौर्य। Yes. सुजीता, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ। हेलो, हाँ सुजीता। हाँ मैम। एक मिनट। सुजीता, ये चलो स्टार्ट करो, रीड करना जरा। इंट्रोडक्शन। विलियम शेक्सपियर। इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट करो। सुजीता। सुजीता, आवाज आ रही है मेरी? Fine, let it be. I cannot wait for her. Anyone else who can read? Anyone else who can read? Okay, Anil. Fine. चलो अनिल, स्टार्ट कर दो। थोड़ा स्लो रीडिंग करना है, स्पीड ज्यादा भगाना मत, हाँ। स्टार्ट विद दिस। William Shakespeare. There has never been as great a name in English literature as that of William Shakespeare. 26 April 1564 to 23 April 1666 to 52 years. Shakespeare, a playwright, poet, and actor, nicknamed Brad of Avon, considered as England's national poet, contributed 38 plays, 154 sonnets, and two epic poems in a short span of 25 years. His plays are categorized into histories, comedies, and tragedies. His greatest comedies, Merry Wives of Windsor, Merchant of Venice, Comedy of Errors, Much Ado About Nothing, Midsummer Night's Dream, As You Like It, should be read as a group because of their shared theme. A Midsummer Night's Dream was written around 1595 as an entertainment slash entertainer of the at the marriage of some great nobleman and was later performed in a public theatre. It embodies the Elizabethan era which believed in witches and spirits, an inevitable part of this drama. These elements and dramatic material are used here along with songs, dances, clever ideas, mistaken identities, etc. The play forces the reader to land into the beautiful land of imagination where all the adventures seem possible in its fictitious fairy world. By the end of the play, Shakespeare makes us think about the way human beings think, act, and love, once again underlining his deeper awareness of the human nature. Go with the Ma'am, theme first, Surya. Yes, theme plot. the dominant theme in A Midsummer's Night Dream is love. Shakespeare tries to portray how people tend to fall in love with those who appear beautiful to them. Though attraction towards beauty might appear to be love, but real love is much more than mere physical attraction. Plot of the play. In the palace, uh, Theseus wins Hippolyta in war. They are to be married with great pomp in 4 days' time. He instructs Philostrate to arrange for the celebration with great revelry. Aegeus matches, Aegeus marches with Hermia, Lysander, Demetrius to complain that Hermia disobeys him and stubbornly refuses to marry Demetrius, is in love with Lysander. The Duke Theseus urges her to obey her father, but she refuses him. The Duke gives her three alternatives to marry Demetrius or become a nun or to suffer a death sentence. The Duke of Athens, Theseus, gives her time to think this over until the day of his own marriage. Ma'am,
एक मिनिट हा. ये इसका ही प्लॉट है ये. अनिल ये इसका ही पार्ट है. गो अहेड दिस पेज. Lysander and Hermia decide to elope to the woods and get married. Demetrius, who used to love Helena, Hermia's friend, has rejected her love and is now interested in Hermia. Hermia reveals her secret plan to her dear friend Helena in order to comfort her. Hermia has made a last-ditch attempt to win back the love of Demetrius for Helena, who reveals to Demetrius that Hermia plans an elopement with Lysander to the woods. Demetrius decides to follow Hermia, and Helena decides to follow Demetrius. Quincy's cottage. A group of workmen from Athens wish to perform a play at the Duke's wedding. Quince is in charge of the direction, production, and rehearsal of that play. Bottom one of the over-enthusiastic, talkative, self-appointed active worker from the group wants to play every role of the play. Pyramus and Thisbe, they all plan to meet in the woods for the rehearsal. In the woods, a different world unfolds in the woods. The king of fairies, Oberon, and queen of fairies, Titania, are having a fight over the custody of an Indian boy as to who shall own him. In order to teach a lesson to Titania, Oberon hatches a plan with the help of Puck. Oberon orders Puck to bring the magic potion, Love in Idleness, the juice of which, if poured on the eyelids of a sleeping person, makes him/her fall madly in love with the first person he/she sees after waking up. He thus plans to madden Titania and get the custody of the Indian boy. Now you can very well imagine what tricks Puck, a mischief spirit, is going to play with this magic potion in the forest. As Demetrius enters the wood, followed by Helena, Oberon notices his cold behavior with Helena and decides to develop feelings for her in the heart of Demetrius, and orders Puck to apply the juice on his eyelids, and marches into another part of the wood and applies the love potion on the eyelids of his sleeping wife. Soon arrives the eloping couple. Tired, they too sleep in the same wood. Taking Lysander for Demetrius, Puck squeezes the juice on his eyelids. Helena, who enters the wood following Demetrius, proves to be the first person Lysander sees after waking up and falls in love with her instantly. Puck, who is appalled by the awful action of Bottom, bewitches him by transforming his head into that of an ass. Titania sees ass-headed Bottom, and one can guess the result. In another part of the wood, Puck wins praise by Oberon for his affair of Titania Bottom, but as Oberon realizes Puck's mistake of using the love potion for Lysander instead of Demetrius, he himself squeezes it on the eyelids of Demetrius and sends Puck to fetch Helena, which leads the fierce quarrel between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for Helena. Oberon then gets the muddle sorted out by setting the wrong right in case of all Athenians by removing the spell of potion from Lysander, restoring his love for Hermia. Oberon also feels the need to release Titania from this spell as he feels sorry for her, and his purpose of obtaining the Indian boy is also served. He orders Puck to restore Bottom's head. Theseus, Hippolyta, and Aegeus enter and see the four Athenians.
It is the day of declaration of Hermia about her decision, but the Duke relents to see the love between Demetrius and Helena and happily allows Hermia marry Lysander. ओके, बस करो दिया। चलो, काफी आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के एक आइडिया मिला होगा। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ में यहाँ पे दो सीन्स चल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ एक मूवी में एक स्टोरी होती है, हम वन साइड देखते हैं, लेकिन वहां पे एक दूसरा सीन, वो एक दूसरा एक्शन, दूसरा सस्पेंस और दूसरा थ्रिलर चल रहा है। सो इन वन ड्रामा यू विल गेट द टू स्टोरीज। दो स्टोरीज मिलेंगे। फिर बाद में किस तरीके से ये दो स्टोरी आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेट बी सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस इन द कैरेक्टर्स। हम उस पे आते हैं, एक मिनट। बिफोर वी गो अहेड एक्सट्रैक्ट और द कोई भी स्टार्टिंग से, सबसे पहले हम आएंगे कैरेक्टर के ऊपर। दीज आर द मेन कैरेक्टर। एक सेकेंड। एक सेकेंड। सो यहाँ पे हम देखेंगे थीसिस। थीसिस, ही इज किंग ऑफ द एथेन, द ड्यूक ऑफ एथेन, ठीक है। यस, ही इज इन फादर ऑफ हर्मिया। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लव एंगल चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक चल रहा है यहाँ पे। सो इगिस जो हर्मिया का फादर है, लिजेंडर, लिजेंडर जो है वो हर्मिया से प्यार करता है। ही इज लव विथ हर्मिया। डेमिट्रियस इन लव विथ हर्मिया। मतलब हर्मिया से प्यार करने वाले दो दो लोग हो गए अभी, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोस्ट्रेट, दैट इज द मास्टर ऑफ द रिवेल ऑफ थीसिस। इसमें ही एक आपको दिख जाएंगे। देन द क्वींस, अ कारपेंटर है। स्नग, अ जॉइनर है। अ बॉटम, अ वीवर है वहां पे। फ्लूट, अ बेलो मेंडर है। स्नाउट, अ टिंकर। देन स्टार्वलिंग, that is in Taylor. Then Hippolyta, queen of the Amazon, betrothed to Theseus. हर्मिया इगिस की डॉटर है। देखो, अब मैं वापस से आती हूँ। हर्मिया जो है ना, जो सेकंड नंबर पे आपने देखा, इगिस की डॉटर है। बट हर्मिया को प्यार करने वाले लिजेंडर और डेमेट्रियस दोनों थे, लेकिन वो किसको प्यार करती थी? टू ही शी लव लिजेंडर को, ठीक है, डेमेट्रियस को नहीं। हेलिना न्यू एंट्री हुई है। हेलिना डेमेट्रियस को लव करती थी। जैसे कि यहाँ पे चार लोगों का प्रॉपर एक है, हाँ, एक चार लोगों का प्रॉपर सीक्वेंस है। बट एक लड़की को दो लड़के यहाँ पे लाइक करते थे, लेकिन एक लड़की है जो एक को करती थी बट वो उसको नहीं करता था। डेमेट्रियस है उसमें वो। नाउ हेलिना जो डेमेट्रियस को लव करती थी। ऑब्रेन, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, हेलिना के नीचे से स्टार्ट होता है एक दूसरा अमेजोन, और ऊपर वाला दो हाइपोलिटा भी एक वही है। दूसरी कहानी, कहते हैं ना, एक राजाओं वाली और एक जंगल वाली, दो कहानियां हैं इसमें। देन ऑब्रेन जो द किंग ऑफ द फेरीज, ठीक है। ऑब्रेन जो है वो किंग है फेरीज की दुनिया का। टाइटेनिया द क्वीन ऑफ द फेरीज। पक, पूरी कहानी में जो गुड़गोबर किया हुआ है, जो पूरा तहश नहश किया हुआ है, वो ये पक था, ठीक है। पक है। और द रॉबिन गुड फेलो, ठीक है, जिसको हम एक मैसेंजर भी बोल सकते हैं, कुछ भी लाइक। देन
पीस ब्लॉसम फेरी छोटी छोटी थी, कॉबवेब भी छोटी वाली फेरी फेरी थी, मौत भी छोटी छोटी फेरी थी वहां पे, देन मस्टर्ड सीड भी फेरी, ये सारी फेरीज हैं। मतलब एक फेरियों की कहानी है जंगल में, जो सेकंड स्टोरी चल रही है। एक है राजाओं की कहानी है जिसके लव अफेक्शंस और एक फ्रेंडशिप में सारी चीजें में एक ट्विस्ट एंड टर्न है। तो ये आपको वापस से समझ में आ जाएगा। वापस से मैं फटफट बोल रही हूँ, ध्यान रखना। ये ड्रामा है, ड्रामा में कैरेक्टर्स के रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है वो। थीसिस जो एथेन का राजा है, एथेन इज अ प्लेस, जो राजा है। ईगस हर्मिया के डैडी हैं। लिसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही एक राज्य के राजा, मतलब राजा नहीं बोल सकते, लाइक दे आर दी ओके गुड बॉयज, अच्छे। तो लिसेंडर हर्मिया से प्यार करता है, यहाँ पे डेमेट्री भी प्यार करता है। देन फिलोसॉफ रिबेल टू थीसिस है। Twins, carpenter, snug, joiner, bottom, weaver, fluid, bellowmaster, snout, tenor, traveling tailors, Haprid, queen of the Amazon, betrothed to Theseus. Then Hermia, daughter to Aegus, ठीक है। हेलिना जो डेमेट्रियस से प्यार करती है, ठीक है। देन ऑब्रन किंग है फेरिस के जंगल का। टाइटेनिया क्वींस है, पक्का रॉबिन फेलो गुड फेलो है। देन अपीजर ब्लॉक ऑफ बैक मॉन्थ मस्टरसीज, ये सारे फेरीज हैं, ठीक है ना। We'll come to the William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर, हम सबको पता है विलियम शेक्सपियर कौन है, क्या करते हैं, ठीक है। बस नाम और काम से यही लोग पहचाने जाते हैं। सो द विलियम शेक्सपियर, देयर हैज, एक मिनट। Okay. So William Shakespeare, there has never been a great as the name in English literature as that of the William Shakespeare exactly. विलियम शेक्सपियर, आज कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा या कोई आज इंसान वैसा नहीं होगा जो विलियम शेक्सपियर, इवन अनपढ़ गवार जो इलिटरेट लोग हैं ना, उनको भी नाम पे एक विलियम शेक्सपियर आ जाता है। कोई पोएट्री लिख दी, अरे विलियम शेक्सपियर की तरह लिखा है, अरे कुछ कहानी लिख दी, ड्रामा, विलियम शेक्सपियर की तरह लिखा है। मतलब आप समझ सकते हो, इनको अडॉप्ट करने वाले, इनकी चीजों को समझने वाले, इनकी मॉरल वैल्यूज लेने वाले। और शेक्सपियर एक ऐसे इंसान नहीं थे कि जो पोयम लिखते थे या आपको किसी एक चीज पे लाइक उससे फोकस करवाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं। द विलियम शेक्सपियर, इनकी जो ग्रुप थी पूरी, इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉरल वैल्यूज, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने मॉरल वैल्यूज लगाई है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया है। इतना तक नहीं, अगर हम पहले की भी बात करें जहाँ पे इंसानों की जिंदगी एक इंसानों की तरह नहीं रहती थी, पहले लेबर सिस्टम्स बहुत चलते थे, तो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के अंदर न्यू रिफॉर्म्स लेके आए, उनको अवेयर किया, उनके अंदर जागृति लेके आई। सो दिस पीपल्स वर्क टू हार्ड for the development of the country, नॉट फॉर द कंट्री। एक्चुअली ये कंट्री के बारे में कम और लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे। क्योंकि कंट्री के बारे में तो है सोचने के लिए, लेकिन लोगों के बारे में सोचने के लिए बहुत कम लोग होते थे। एज ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स कुछ चीजों के लिए, बट इन्होंने एक सोच ली। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कैसे ब्रिटिशर्स ने काफी रोक टोक लगाई थी कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, इसी तरीके से इनके साथ और भी जो लोग थे, इंग्लिश रिफॉर्मर्स थे, वो अपने कंट्रीज के लिए, अपनी लोगों के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए काफी फाइट करते थे। तो उस टाइम पे इनके पास भी कुछ हथियार नहीं होती थी, इनके पास भी कुछ ऐसी चीजें नहीं होती थी जहाँ पे ये रिवॉल्ट कर सके उस चीजों को लेके। यही एक पेन होता था, यही एक पेज होती थी, और यही उनकी एक राइटिंग होती थी, जहाँ पे उन्होंने काफी चीजों को एनहांस किया है। बाकी ये सब जो पोएम्स राइटिंग, ये सब तो एक पार्ट है वेयर वी एंजॉय एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्टली इज देयर, ठीक है। चलो।
सो इज ऑन 26 अप्रैल 1564। सोच रहे हो? आपकी सोच भी उतनी दूर तक नहीं जा सकती। 26 अप्रैल 1564। then 23 अप्रैल 1616। 52 years ही जिंदा रहे ये। just 52 years। A Shakespeare, a playwright, poet, actor, nickname Bad of Avon। इनका nickname क्या था? Bad of Avon। Considered as England national poet। Contributed 38 plays किए इन्होंने। 154 sonnets and no and two epic poem in short span of 25 years. His plays are categorized into the histories, comedies, and tragedies। His great comedies, ये सब इनके काम जो है बता रहे हैं। Merry Wives of Windsor, this is the work done by him। Then Merchant of Venice बहुत अच्छा है। कॉमेडी ऑरर्स भी मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छा है। देन मच एडोज अबाउट नथिंग। देन मिड समर ड्राइव आप पढ़ रहे हो। एज यू लाइक इट भी बहुत प्यारा है। मतलब व्हेन यू विल रीड दिस थिंग्स ना, मजा आ जाता है। इट शुड बी रीड एज अ ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट थीम्स। अब नाउ वी विल सी अबाउट द मिड समर नाइट ड्रीम क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ मैं, सी इट प्रॉपर्ली। इफ यू हैव द स्टूडेंट टेक्स्ट बुक तो प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक, बिकॉज मुझे थोड़ा जूम करना पड़ रहा है। आई कैन नॉट सी इट प्रॉपरली, मेरे मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। अ मीट समर नाइट ड्रीम वॉज रिटन अराउंड 1595। 1595 में ये लिखा गया था एज एन एंटरटेनर एट द मैरिज ऑफ सम ग्रेट नोबलमैन एंड वॉज लेटर परफॉर्म्ड इन द पब्लिक थिएटर। मतलब एक शादी थी, वहीं पे वो सारी चीजें लिख रहे थे। इसको बाद में एक थिएटर में उसको प्ले कराया गया। इट एम्बॉयज एलिजाबेथन। एलिजाबेथन जब शेक्सपियर थे उसके पहले भी एलिजाबेथन थी। एलिजाबेथन वॉज लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा इनसे पहले थी। हाँ, एलिजाबेथन एरा विच बिलीव इन विचेस एंड स्पिरिट। उस टाइम पे, जिस टाइम एलिजाबेथन थी उस टाइम चुड़ैल की कहानियां, देन भूतों की कहानियां, देन ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशंस, ये सारी चीजों की एक स्टोरी होती थी। आज भी हम वो देखते हैं ना, कोई छोटा बच्चा रहता, एक काले घने जंगल में एक भूतिया घर, यहाँ से हवा आ रही है वहां से। ये सारी चीजें हम बच्चों को कैसे डराते थे पहले कहानी सुनने के लिए, बच्चे डर जाते थे वो चीज के लिए रियल। तो यही तरीके से वो कहानियां भी एलिजाबेथन के टाइम पे बहुत फेमस थी। Her along with the okay, an inevitable part of his drama. This element dramatic material are used her along with song, dances, clever idea, mistaken identities, etc. This play forces the reader to land into the beautiful land of imagination where all adventures seem। अगर अभी आज के करंट पे देखें तो आपने वो फ्रोजन वाला एक है ना मूवी, जो एक लड़की है पूरा फ्रोजन, क्या नाम है? आई डोंट रिमेम्बर दैट इंग्लिश मूवी, कार्टून मूवी है फ्रोजन वाला। आई थिंक सो फ्रोजन ही मूवी है। एक वो ले लो, एंड देन सिंड्रेला की एक कहानी ले लो। ठीक है, ऐसे दो तीन चीजें और है जहाँ पे एक वो आता था, एलिस इन वंडरलैंड। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो, जब एलिस इन वंडरलैंड आप देखते हो ना, तो एलिस इन वंडरलैंड की एक एक चीज जो है ना, आपको चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, इवन समटाइम्स आई, मैं अभी भी उस चीज को देखूंगी ना, तो मुझे अपना बचपना तो याद आएगा ही आएगा। लेकिन आई फील लाइक कि यस, वो जिस तरीके से अपनी दुनिया में जाती है, वो जिस तरीके से अपनी सोच रखती है, वो जिस तरीके से एक चीज को स्ट्रगल उसने देखा, एंजॉय कर रही है उस चीजों को, वो चीज ना हम भी वही इमेजिनेशन करते हैं। कुछ
एलिस इन वंडरलैंड में बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब कभी कभी वो एप्पल भी आप अगर लेके खा रहे हो ना वहां पे। हाँ, एल्सा एंड एना फ्रोजन कैरेक्टर है, राइट जेनिल। सो यहाँ पे आपको चीजें बहुत अच्छी, मतलब कार्टून देखते हो ना आप, तो वो फीलिंग एक आ जाती है। कभी कभी आप सस्पेंस भी देखोगे, थ्रिलर देखोगे, बिकॉज ये चीजें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई लव टू सी द कार्टून्स। मुझे कार्टून मूवीज पसंद है, मुझे कार्टून्स पसंद है देखना, जहाँ पे आप म्यूजिक को अपना एक एंटरटेनमेंट बनाते हो ना, कि यस म्यूजिक सुनने के बाद आई फील रिलैक्स, आई फील कूल एंड काम। एक ये मेडिटेशन है, आपको बता दूं म्यूजिक एक मेडिटेशन पार्ट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वी कैन से। जब आप कभी टेंशन में होते हो और वेन एवर यू फील लाइक वेरी ऐसा, आप फास्ट म्यूजिक मत सुनो, आप स्लो म्यूजिक सुनो। कुछ देर के बाद में यू विल फील लाइक कि हाँ अच्छा लग रहा है। तब आप जब फास्ट मूवी में जाओगे ना, आप कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, जब आप स्लो मूवी में जाते हो ना, तो कभी कभी हम अपने सारे इमोशंस को ना कलेक्ट करना चालू कर देते हैं। जो मेरी एक्सपीरियंस ऐसे मैं बता रही हूँ आपको, कि हम जो अपनी इमोशंस होते हैं ना, वो स्लो म्यूजिक में सारे कलेक्ट होने स्टार्ट। लेकिन आप कभी भी देखो पार्टी मूड वाले अगर आप गाने सुन रहे हो ना, आपके दिमाग में तिनकी भर चीज नहीं आती है। बट एग्जैक्टली अगर आपको अपना दिमाग कूल एंड काम रखना है, आपको स्लो म्यूजिक बोल रही हूँ, आपको अपनी चॉइस की अच्छी मूवी अरे म्यूजिक बोल रही हूँ, बट इट नॉट शुड बी डेट वाला, लाइक सैड मूवी हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं। कुछ ऐसी मूवी जो आपको पसंद है, एंड बट जो आपकी चीजों से, जो आप जिससे डिप्रेस्ड हो, उससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। हम्म? और अदरवाइज द बेस्ट वन इज, इफ यू लाइक दी कोई रैप का गाना पसंद है आपको, या कुछ भी चीजें, अगर आप उसको कभी भी जस्ट यू हैव टू डू एन दिस एक्सपेरिमेंट वंस, हाँ। आपको एग्जाम्स दे के आते हो ना, एग्जाम्स दे के आप आते हो, आपको लगता है ये सब तो चुपचाप सो जाओ, बैग उधर फेंको, ये करो, बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, बोर्ड ही एग्जाम है, नॉट टू वरी सो मच। कोई भी एग्जाम्स के लिए ओवर एग्जैगरेट करते हैं तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। गिव द टाइम द म्यूजिक फॉर द 2 मिनट्स। देखो आप इतने तो अच्छे नहीं हो, हाँ, कि आप मेडिटेशन और योगा करो, वो तो आप कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर म्यूजिक बोल दूंगी तो वो आप बकायदा सुनोगे वो चीजों के लिए। टीवी खोल के बोल दोगे तो वो, टीवी में म्यूजिक देखना और सुनना दो अलग अलग चीज होती है। वेन एवर यू फील स्ट्रेस, जस्ट गो फॉर द म्यूजिक। आया समझ में? वाह जेनिल वाह। जेनिल तो अलग ही मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। जेनिल को काफी अच्छा जेनिल तुम्हारा नाम नहीं बोलूं, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी जेनिल तुम्हारा नाम, टेंशन मत लो। ओके, सो दिस इज द ऑल एक्सपीरियंस, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ओके फाइन। सो वापस से हम उस चीज पार्ट पे आते हैं जो मेन है। हाँ, तो एलिस इन वंडरलैंड में था हमारा, क्योंकि ये राइटर्स जो होते हैं ना, हमें हमारी इमेजिनेशन में लेके जाते हैं वो चीजों को। यही जो ड्रामा द मिड समर नाइट ड्रीम, जब ये बुक रिलीज हुई थी ना, इस टाइम मुझे उतना नहीं पता था कि ये है क्या। तो उस एक एक ड्रामा को इवन टीचर्स नीड टू स्टडी। जब फर्स्ट टाइम एक सिलेबस चेंज होता है, तो हमको वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर पब्लिशर जो होता है अपनी तरीके से इस राइटिंग को थोड़ी चेंज करते हैं। जो राइटर्स होते हैं इसमें, वो राइटिंग को चेंज करके उस पैटर्न को चेंज करके करते हैं। तो मेरे दिमाग में होती था, अरे यार ये बहुत मजेदार होगा, एक गधे को, अरे एक लड़की को गधे से प्यार हो गया है, दिस दैट पिक्चर जो वहां पे बताया ना, ये वाला, ये वाला, कि एक लड़की को गधे से प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। वी कैन, वी हैव दी some different imagination of this, and definitely you feel very like happy। एक मिनट, हाँ। हम्म, कि हाँ कुछ तो आया है, क्योंकि अभी 5th and 6th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक कार्टून वाली बुक्स होती थी, सारी चीजें ना, तो मजा आता था पढ़ने के लिए। वी हैव सीन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इनके अंदर वो पावर्स होती है जो हमें अपने स्टोरी में डुबा सकते हैं, जो अपनी स्टोरी में बहुत ही एंटरटेन कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट आपको वो चीज समझना होगा।
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आपके जो ड्रामा के पार्ट है ना, ये ना सारी चीजें यूट्यूब में एक मूवी तरीके से भी दिया गया है। आप एक मूवी में भी देखोगे तो आपको ये सारी स्टोरीज बड़े अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी। चलो, सो नाउ this element and the dramatic material are used here along with the song dances। एक मिनट हम इधर ही थे, हाँ। Ideas, mistaken identity. The play force the reader land to the beautiful land, the imagination, where all the adventure seem the possible in the fiction fairy world। मैंने आपको बताया था जैसे द एलिस इन वंडरलैंड में सारी चीजें फिक्शन है। हम्म कैसे वो यहाँ से यहाँ आती है, जब यहाँ आती है तो उसके पास बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं करने के लिए। हाँ, शी एंजॉयज। हमको लगता है कि यार कभी कभी हमको भी उस दुनिया में जानी चाहिए, तो हमारी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस टाइम की, बस यही जिंदगी चाहिए अपने को। ये वाली चीज होती है। सो बाय द एंड So by the end of the play, the Shakespeare make us think about the way human beings think, act, and love once again, underlying his deeper awareness of human nature। यहाँ पे प्यार के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में चीजें एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द शेक्सपियर हैज रिटन। शेक्सपियर के तो देखो सारी चीजें अच्छी है। कोई आगे किसी को लिटरेचर में कुछ करना है कि नहीं करना है, जो भी चीजें हैं, बट यू हैव टू बी रीड वंस दिस थिंग्स, सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, बट इन अलग तरीके से जहाँ पे आप चिल होके पढ़ पाए, नॉट इज द टीचिंग या तो रीडिंग मैटर पे। नाउ वी विल गो टू द थीम। इसका थीम क्या है? जस्ट अ सेकेंड। The dominant theme in A Midsummer Night Dream is love. Shakespeare tries to portray how people tend to fall in love with those who appear beautiful to them. Though attraction toward beauty might appear to be love, but real love is much more than mere physical attraction। यहाँ पे एक प्यार के बारे में दिया गया है, ठीक है, एक लव के बारे में। जहाँ पे हम सब किसी ना किसी को प्यार करते हैं, बट ये बात अलग है कि अब शायद से प्यार जब ये दूसरे वाले स्टेज का चालू होता था, अब आप लोग इतने ही छोटे से चालू कर देते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वी हैव द ट्रू लव विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर सिबलिंग्स। ठीक है, और सबकी जो प्यार की कैटेगरी होती थी वो अलग होती थी, किसी का कम और किसी का ज्यादा। एक टाइम ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कीप माई वर्ड्स इन योर माइंड, करते थे। when we were very small, at the time the age of around मतलब जब से पैदा हुए हो तब से लेके अराउंड 5 6 7 5 6 7 ईयर्स। ठीक है, 7 के बाद में यू गेटिंग द सडन चेंज, you feel like the mama and daddy is not, my parents are not listening to me, even my siblings, my brother or sisters are too much of the dominate with me। आपको ये फीलिंग, आपका प्यार फेड होने लगता है विद द टाइम ऑफ द एजेस। उसमें भी यही चीज समझाने की कोशिश की है कि हाउ इट बिकम द ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, हम इस प्यार पे बाद में आते हैं। पहले हम प्यार की स्टार्ट करते हैं घर से। ठीक है, देन आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे फेडिंग्स होने लगे हैं। अब आप अपने पीयर ग्रुप से मिलते हो, द पीयर ग्रुप मीन्स हियर योर फ्रेंड्स इन स्कूल। तो स्कूल में आपको लगता है यस, ये फ्रेंड के साथ मैं मस्ती करता हूँ, एंजॉयमेंट करता हूँ, इसकी चीजें मैं बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर भी करता हूँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ, नॉट ज्यादा। याद रखो, हम छोटे होते हैं और हम क्या चीजें शेयर कर सकते हैं डेट वी डोंट नो अबाउट। सो हम चीजें शेयर करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हम्म
Students, just take minute, huh? Give me a time. पाँच मिनट और है. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये था. तो हम थे लव के ऊपर, ठीक है. सो यहाँ पे दो लोगों का दिख रहा है. जैसे वी हैव सीन द कैरेक्टर अबाउट द लिजेंडर. मिया का देखा था हमने, देन डेमिट्रिस का देखा था और हेलेना का देखा था. दिस इज द फोर पीपल्स के एक लव अफेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे द मॉरल जो थीम जो दिख रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लव, दिस शुड बी अपियर इन ब्यूटीफुल. जो ब्यूटीफुलनेस होती है आपके अंदर, जो आपके नेचर में होता है, जो आपके कैरेक्टर्स में होते हैं, आप जिस तरीके से आप जिससे बात करते हो, दैट इज द ट्रू लव. नॉट विद द फिजिकल अट्रैक्शन शुड बी देयर. इफ द फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू बी लिव फॉर द लॉन्ग लास्टिंग, नहीं होती वो चीजें, ठीक है. द थिंग इज ओवर हियर, ओनली द ट्रू लव्स अपीयर विद द ब्यूटीफुल हार्ट. इतना आपको याद रखना है. नाउ विल कम टू द प्लॉट ऑफ द प्ले. सो ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है, ये एक पैलेस का प्लॉट है. दिस इज द सीनरी वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द पैलेस. थीसिस विद द हाइपोलाइटा इन वॉर, ठीक है. थीसिस की जो लड़ाई चल रही, थीसिस विन हाइपोलिटा. दे हैव टू बी मैरिड विथ ग्रेट pomp in 4 days time.
इंस्ट्रक्ट द फिलोस्ट्रेट टू अरेंज दी सेलिब्रेशन विद ग्रेट रेवली। जब कोई जीतता था ना, तो वहां पे उसकी राज्य तो होती थी, बट वो वहां पे शादी भी उसी लड़की के साथ में करता था, ठीक है, या अपनी लड़के से, उसकी लड़की से शादी करवाता था। नाउ इगिस मार्चेस विथ हर्मिया। इगिस की जो डॉटर थी उसका नाम क्या था, हर्मिया। लिजेंडर डेमेट्रियस टू कंप्लेन दैट हर्मिया डिसोबे हिम। यहाँ पे एक कंप्लेन गई हर्मिया के लिए कि हर्मिया यहाँ पे डिसोबे कर रही है। स्टबलिन रिफ्यूज टू मैरी डिमिट्रियस। हर्मिया जो शादी नहीं करना चाहती है डिमिट्रियस, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे वो लिजेंडर से प्यार करती थी। जब एक लिजेंडर से प्यार करती है, डेमेस्ट्री को हाँ हाँ बोल ही नहीं सकती, राइट। तो रिफ्यूजेस टू मैरी द डिमिट्रियस एंड एज इन लव विथ लिजेंडर। द ड्यूक थीसिस, द ड्यूक मीन्स राधा था थीसिस का, urges her to obey her father but she refuses him। वो अपने डैडी की भी बात नहीं सुन रही थी, वहां पे रिफ्यूज कर रही थी शादी के लिए। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लिजेंडर से प्यार करती हूँ। हाँ। हाँ, नाउ हियर द थीसिस सजेस्ट टू ओबे, जो उसने ओबे नहीं किया, ठीक है। सो बिकम टू रन टू सफर अ डेथ सेंटेंस। यहाँ पे ड्यूक ने क्या कर दिया कि थ्री अल्टरनेटिव, उसने तीन अल्टरनेटिव क्या दिया कि चल तुझे शादी नहीं करनी है ना, लेकिन तू मेरी तीन चीजें मान। मतलब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए, मेरी डेमेट्रिस, या तो तू डेमेट्रिस से शादी कर ले, या तो तू नन बन जा, और या तो तू डेथ सेंटेंस पे आ जा। तीन चीजें हैं। सो द ड्यूक ऑफ एथन thesis give her time to think this over until the day of his own marriage। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ एथन था थीसिस, उसको कुछ टाइम दिया सोचने के लिए कि ले तेरे को समय दे रहा हूं मैं, कुछ टाइम दे रहा हूं, एंड यू थिंक अबाउट इट 1,000 of times और डेज में तू सोचती रहे, लेकिन शादी तो तुझे मेरे लड़के के साथ ही करना होगा, चाहे तू लिजेंडर से प्यार कर और चाहे मत कर। भाई ये तो बगावत पे आ गए थे इन लोग, जबरदस्ती शादी कोई कराता है ऐसे, लेकिन नहीं। यहाँ पे हर्मिया को कीड़ी कटी हुई थी, ठीक है, उसको लीडर से शादी करना है। आगे देखो, ये पिक्चर आप देख रहे हो किस तरीके से ये गधा जो है ना, ये गधा फेस वाला, ये ना लिजेंडर डेमिट्रिस है, ठीक है। और यहाँ पे पक ने जो पोजिशन डाला था प्यार का, उसको बुंद बोलते हैं, आंख में डाला था ना उसने, दिस इज द हर्मिया। ये एक लड़की है जो गधे से प्यार कर रही है। पढ़े थे ना ये? Now come to the Lysander and the Hermia. The Lysander and Hermia decide to elope। इन्होंने डिसाइड किया अब हम घर से भाग जाएंगे, जो आज भी हो रहा है वो चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया हम घर से भाग जाएंगे टू द वुड एंड गेट मैरिड। टू द वुड का मतलब हो गया जंगल में कहीं पे, ठीक है। डिमिट्रियस who used to love हेलिना। हर्मिया फ्रेंड, हर्मिया की जो फ्रेंड है वो थी हेलिना, जो डेमेट्रियस को प्यार करती थी, ठीक है। लेकिन डेमेट्रियस तो
हर्मिया को प्यार करता था। यहाँ पे अलग ही लव ट्रायंगल चल रही थी। सो हैज रिजेक्टेड हर लव एंड नाउ इंटरेस्टेड इन हर्मिया। हर्मिया लिविंग हर सीक्रेट प्लान टू हर डियर फ्रेंड। यहाँ पे हर्मिया ने अपनी सारी जो सीक्रेट प्लान थी उसने अपने फ्रेंड को बता दिया। एंड हेलेना इन ऑर्डर टू कंफर्ट हर, और यहाँ पे हेलेना ने थोड़ा सा बेनिफिट उठाने की कोशिश की उसकी। सो हर्मिया हैज मेड अ लॉस्ट डिच अटेम्प्ट टू विन बैक the love of Demetrius for Helena, who revealed to the Demetrius that Hermia planned an elopement with Lysander to the wood. Demetrius decided to follow Hermia and Helena decided to follow Demetrius. यहाँ पे हेलिना जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होके उसने उसके पीठ पे ऐसे खंजर मारा। उसने क्या किया, डेमिट्रियस को सारी उसकी प्लानिंग के बारे में बता दिया। ठीक है। नाउ हर्मिया ने प्लान किया कि वो लिजेंडर के साथ जाएगी वुड पे। डेमिट्रियस ने डिसाइड किया वो हर्मिया को फॉलो करेगा, और हेलिना ने डिसाइड किया वो डेमिट्रियस को फॉलो करेगी। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम आते हैं क्वींस कॉटेज। अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन from the Athens wish to perform a play at the Duke wedding. The Queen's is in charge of the direction, production, and rehearsal of that play. Bottom, one of the over-enthusiastic, talkative, self-appointed active maker from the group want to play every role of the play, that is the Pyramus and the Thisbe. They all meet to plan to meet in the wood for the rehearsal. यहाँ पे क्वींस कॉटेज था जहाँ पे शादी की तैयारियां हो रही थी। शादी की तैयारियों के लिए यहाँ पे कुछ लोग को इकट्ठा किया गया था, बिकॉज उनको एक प्ले करना था, उनको एक ड्रामा करना था। तो ये उसी की सारी सीनरीज बताई जा रही है। सो यहाँ पे द ग्रुप ऑफ वर्किंग वर्कमैन का क्या होता है, जहाँ पे कौन, एक मिनट, स्टूडेंट जस्ट एक मिनट, हम जस्ट रीड दिस पेज बाय योर ओन, गिव मी अ मिनट।
ओके सो भाई देखो यहाँ पे नहीं कहानी है पूरे जंगल में मंगल हो रहा है। देखते हैं पूरी कहानी फिर जंगल में ही चल रही है। नाउ कम टू दी इन द वुड अ डिफरेंट वर्ल्ड अनफोल्ड a different world unfold in the wood. The king of fairies, Oberyn on queens of fairy, ये दूसरा आ रहा है। जैसे मैंने आपको लोग को बोला था कि ये दूसरी तरफ की दूसरी स्टोरी है। ठीक है, एक तरफ जो एथेन है और दूसरी तरफ जो फेरिस टेल है। एथेन वाली ये सब अभी जस्ट आपको मैं अभी बताऊं कि थीम तो है ही, थीम के साथ में सिर्फ एक प्लॉट दिया हुआ है। प्लॉट पहला प्लॉट यहाँ पे पैलेस में है जो उन्होंने बताया। दूसरी जहाँ पे शादी के लोगों की रिहर्सल हो रही है डेट इन द क्वींस कॉटेज। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना वापस से सारी चीजें अच्छे से बताऊंगी। और सेकंड है जो चल रहा है इन द वुड। नेक्स्ट चीज दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द वुड, मतलब अलग अलग जंगल है। एक वुड है जहाँ पे मेन फेरिस का चल रहा है, टाइटेनिया और हाइपोटेस का। नेक्स्ट है यहाँ पे जहाँ पे इन लोग यहाँ पे भाग के जंगल में वहां पे थोड़ा सा वायलेंस भी होता है, झगड़ा भी होता है फ्रेंड्स के बीच में। देन वहां पे सिपाहियां भी आते हैं। काफी चीजें उस जंगल में चल रही है, मतलब द होल ऑफ द स्टोरी हैज टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ द जंगल ऑफ द वुड। ठीक है, देन इसका प्लॉट बस यहीं पे खत्म होता है। फिर यहाँ से अपनी रीडिंग चालू हो जाएगी। जस्ट वी हैव 1 मिनट मोर, आई डोंट वांट टू गो फॉर अहेड विद इन द वुड, क्योंकि वो स्टार्ट करूंगी तो अपना इनकम्प्लीट अधूरा रह जाएगा। जस्ट यू हैव टू रीड एंड गो विद दिस। सिनोफिस एक बार करो और एक बार ड्रामेटिस पर्सनिया कर लो एक बार। ठीक है, 1 मिनट। जैसे एक बार ये रीड करो आप अपना। Just 1 minute we have, then we will close the lecture. Nobody is going to leave. Attendance बाकी है, nobody is going to leave. अटेंडेंस बाकी है, बता रही हूँ मैं। आप पहले सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। चलो एवरीवन, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय 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 मैम। बाय।